Is my voice audible? Voice audible? Am I audible? आवाज आ रही है? Can you hear me? आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Let's start our class. Before we should proceed, let's unmute your switch on your video, please. So switch on your video, everybody. Switch on your videos, everybody. Switch on your video, everybody. Everybody. Everybody, Revashi. Everybody. Everybody. Wait for a minute. Anybody else left? Suraj Raj, Sagraf, Vani, Anisha, Shraddha, Snehlata, Nikita. Nikita, switch on your video. अरे आप On है सर. कहाँ आ नहीं रहा? अच्छा, लग रहा था कि स्टैटिक हो. स्नेहलता, चलो जल्दी, हरी आप. ओके, थैंक यू. थैंक यू. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ओके, अभी हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है, अनम्यूट रखो सब अपने आप को. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आज तुम्हारा वो नहीं आया क्या? वो लड़का था एक और लड़का था, कोई नाम हमको याद नहीं आ रहा है. देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे. टुडे वी विल लर्न अबाउट द सेलेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. टुडे वी विल लर्न अबाउट सेलेक्ट स्टेटमेंट. सो बिफोर वी शुड प्रोसीड, लेट्स wait 1 minute here. Okay, so we will see about the select statement. Okay, हम लोग select statement के बारे में पढ़ेंगे. Wait 1 minute. We'll learn about the. So now what does select statement do? That we will see here. Okay. देखो यहाँ. Let's see about the select statement. I hope the screen is visible to you. Is the screen visible? Yes, sir. Select. Yes. Select statement is used to retrieve the record from the table. या हम टेबल का एक और नाम क्या बोलते हैं? टेबल का एंटिटी. या हम और क्या कहते हैं? रिलेशन. ओके, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्राइव the record from the table, entity or relation based on some condition. Okay, based on some condition. Okay, now what are these condition? There are 3 condition: and, or, and not. We will see each condition one based on some condition. We will see each condition one by one. Now, what are the condition? What is and what is or, what is not? And. Okay, and is used to and is used to concatenate, या हम कहेंगे combine. Okay, and is used to combine two
or more than two condition. Okay, and is used to combine two or more than two condition. Suppose I have told, I am telling, uh, I want to tell me the name of those students who are, मैं यहाँ पे दो condition, I am going to say two condition, who are first girl, second who read in section D. Now what will be the name of the students? That those students, you will name those students only, those who are girl and those who study in the section D. How many conditions are there? Here there are two conditions. First, the first student should be girl, and second, they should be the student of section C. Here there are two conditions. So and both are mandatory. ठीक है, दोनों कंडीशन जरूरी है, दोनों कंडीशन का फुलफिलमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं. ठीक है, बोथ आर मैंडेटरी, देन वी यूज एंड. और जहां पर दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाए तो काम चल जाएगा, तो वहां पर हम लगाते हैं और. ठीक है, और कंडीशन और also used to combine two or more than two condition. ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों का डेफिनेशन वही हो जाएगा. ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है, अंतर बाद में लिखेंगे. और is used to combine two or more than two condition, more than two condition. अभी दोनों में क्या अंतर है? ये वाले में क्या है, एंड में क्या है? where both should be evaluated true. ठीक है, जहां पर दोनों इवेलुएट होगा ट्रू तभी एग्जीक्यूट होगा. where a statement is executed when both the condition are evaluated true. okay, जहां दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तभी, जहां पर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, एंड और इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर देन टू कंडीशन, एंड statement is executed when either condition is evaluated true. Don't go for my spelling mistake अभी. ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं. ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी यहाँ पर हमारा देख लो. ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू यू. ठीक है, आई होप इट इज विजिबल. ठीक है, ये टेबल विजिबल है? यस सर. लेट्स सी. ओके, टेबल इज विजिबल. बी रिस्पॉन्सिव, जवाब देना है. ठीक है, मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नंबर 1, ई नेम JKS, डेट ऑफ बर्थ 15/5/1993, सैलरी 2000. ठीक है, सेक्स मेल. ठीक है, सी दिस I have taken 2 PQR DOB 16/6/1988. salary here I have taken 3000. sex I have taken female. Now my question is, you see here the question. Okay, you see here question, display all records. What will be the answer? Tell me, anybody of you. display all records from क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखेंगे, ऑल रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे. देखो यहाँ पर डिस्प्ले, राइट SQL टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स एंड ऑल एट्रीब्यूट. सारा रिकॉर्ड देखना है, मतलब EMP नंबर भी देखना है और E-नेम भी देखना है, जॉब भी देखना है, सेल भी देखना है, सेक्स भी देखना है. क्या क्या लिखेंगे? ठीक है, तो राइट the SQL to display all attributes of table. सारा एट्रीब्यूट्स देखना है.
क्या लिखेंगे बोलो, अनीशा बोलो। Select बोलो star सेलेक्ट, from ओके, स्टार फ्रॉम EMPL. EMPL, राइट। अब मान लो सपोज आई हैव टोल्ड डिस्प्ले द ई नेम, जॉब एंड एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। क्वेश्चन इज राइट द SQL to display job name and EMP number from टेबल, या हम इसको बोलेंगे रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन EMPL, ठीक है। हम ये बात लिखे, बोलो क्या होगा आंसर, बोलो चलो बोलो, कौन बताएगा, बताएगी, कौन बताएगी, बोलो चलो जल्दी, हरी अप, टेल मी। सूरज राज चौधरी बताओ जल्दी। सूरज सर राज क्या क्या चौधरी, दिखाना है? सामने लिखा हुआ है राइट द SQL टू डिस्प्ले द नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब नेम एंड एम्प्लॉय नंबर। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट बोलो, अरे यार। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स, एनीबडी, जल्दी से बोलो, निकिता। Select हाँ सेलेक्ट, बोलो जल्दी बोलो, फट से। job सेलेक्ट जॉब, ename ई नेम, comma EMPNO EMPNO from EMPL. from EMPL, right? Is it clear? Next, suppose I have written the question. Next, come to the condition. Okay. क्या हुआ बेटा, अच्छा लेते हो, ठीक है। Suppose this is answer of this question. Okay, this is answer of this question. Okay, I have written it here, and this is the answer of उल्टा लगा दिए हैं क्या, देखो तो उल्टा रख दिए हैं क्या, उल्टा रख दिए, उल्टा रख दिए थे। चलो अब आते हैं कंडीशन पर, ठीक है। नेक्स्ट, कम टू द कंडीशन। नाउ सपोज आई टेल यू, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है राइट द एसक्यूएल टू डिस्प्ले द नेम ऑफ those employee whose employee number employee number is greater than 100। कौन बताएगा, रेज योर हैंड, बताओ इसमें, चलो अनीशा बताओ, अनीशा बोलो, ट्राई करो, दिख रहा है अनीशा, इज इट विजिबल? Yes नहीं sir. दिख रहा है, सर दिख रहा है तो चलो बोलो क्या होगा इसका आंसर, बोलो आंसर बोलो। राइट द एसक्यूएल, ठीक है। क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल टू डिस्प्ले द those employee you have to display the name of those employee, ठीक है। क्या डिस्प्ले करना है, बताओ, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ रहा है, देखो यहाँ, ठीक है। क्या यू हैव टू डिस्प्ले नेम, चलो बोलो निकिता, नेम डिस्प्ले करने का क्या कमांड होगा, बोलो नेम के लिए, बोलो निकिता, कैन यू हियर मी, सुन रही हो? राइट द एसक्यूएल टू डिस्प्ले नेम, ठीक है, नेम इतने तक का, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे नेम डिस्प्ले करने के लिए, select ename from EMPL. ठीक है, चलो सेलेक्ट EMPL, सेलेक्ट इनेम है ना, क्या है, इनेम फ्रॉम EMPL, ठीक है, क्या है,
E name from EMPL. Select E name from EMPL. I hope it is clear. यहाँ तक आधा क्वेश्चन बन गया. Select E name from EMPL. This is half of the question. Okay, this is half of the question, right? अब कंडीशन क्या है? कंडीशन greater than 100. क्या बोल रहा है? कंडीशन क्या है बताओ? कंडीशन को रीड करो. वेयर क्या है कंडीशन बोलो? EMP नंबर. वेयर EMP नंबर ग्रेटर देन, क्या है कंडीशन? वेयर EMP नंबर ग्रेटर देन 100. ठीक है, ग्रेटर देन 100. आई होप इट इज क्लियर. ये समझ में आया सबको? समझ में आ गया? आया समझ में? सगफ क्लियर है? स्नेहलता, ये किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ, फिर हम बताएंगे. सर वहाँ पे ग्रेटर नहीं लिख सकते हैं? नहीं, ग्रेटर नहीं लिख सकते हैं. ग्रेटर देन का साइन देंगे, लेस देन का साइन देंगे. ठीक है, लेस देन का साइन देंगे. बात आया समझ में? ग्रेटर देन नहीं लिख सकते हैं. वहां पर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लिखेंगे. ज्यादा गलती इसी में होता है, ग्रेटर देन लोग लिख देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप इट इज विजिबल टू यू. ठीक है, राइट, देखना, राइट द SQL, write the SQL to display name, job, salary of those employee whose job is whose salary is greater than 2000, whose salary is greater than 2000. ठीक है, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट बताओ? सिलेक्ट. बोलो अनीशा, अब अनीशा को बोलने दो थोड़ा, और सगफ ठीक है, बोलो. Select हाँ, e-name, बोलो. e-name job, सेलेक्ट, हाँ, salary from EMPL, where salary है, सेल, हाँ, greater sign 2000. कितना है? थ्रू 2000. ओके, तो ये समझ में आ गया. हियर आई एम गिविंग ओनली वन कंडीशन. यहाँ पर हम कितने कंडीशन दे रहे हैं? देखो यहाँ पर एक कंडीशन है. हियर देयर इज ओनली वन कंडीशन. हम सारे कंडीशन को देखो हम यहाँ पर बोल्ड कर दे रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या है? एक कंडीशन है. यहाँ भी क्या है? एक कंडीशन है. ठीक है, यहाँ भी एक ही कंडीशन है. ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी एक ही कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है. अब मान लो सपोज आई एम सेइंग राइट द SQL. ठीक है, राइट द SQL. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज राइट द SQL to display the name of those employee whose job is clerk. Okay, and salary is less than 3000. चलो कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? हो विल से बताओ. दो कंडीशन है, कौन ट्राई करेगा? सर हम. निकिता बताओगी? अच्छा चलो ठीक है, गुड. बोलो. सिलेक्ट e-name from EMPL, where
where job जॉब इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लर्क। ओके, ये पहला कंडीशन है। और and less than salary less than and salary less than 3,000. Okay, see, this is one condition. What is my first condition? My first condition, condition जब भी लिखा जाता है तो where के बाद लिखा जाता है, ठीक है। Condition is after the where and here we have written. Okay, you can see here there are two condition, ठीक है। हम जितने भी condition इसमें डाल सकते हैं सबको and से select and से हम इसको ये क्या करते रहेंगे, कॉन्केटिनेट करते चले जाएंगे, ठीक है। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को? हाँ चला गया, हाँ। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, अब मान लो हम देखना चाहते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट SQL to display the name of those employee whose job is either clerk और यहाँ पे ऐसे नहीं क्लियर लिखे हैं आप। either job is either clerk और MGR, ठीक है, ठीक है। ये इसका बताओ क्या लिखाएगा? टेल मी, who will say? Select e-name. बोलो बोलो। हाँ सर, select e-name from EMPL. Select e-name from EMPL where job is equal to inverted comma में वेरी गुड। और MRG करके, और MRG नहीं, पूरा बोलो। जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और जॉब इज इक्वल टू MRG और जॉब इज इक्वल टू MRG, ठीक है। ज्यादा मिस्टेक इसी तरह में होता है, समझे। और जॉब इज इक्वल टू MGR, ठीक है। होता क्या है मिस्टेक, यहाँ पे ऐसे लिख देगा वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और वहीं पे लिख देगा MGR भी लिख देगा। ऐसा मिस्टेक इसी जगह पर होता है। देखो अगेन यू कैन सी हियर देयर आर दिस इज वन कंडीशन, ठीक है। दिस इज वन कंडीशन एंड बिसाइड दिस हियर इज अनदर कंडीशन। ओके, दो कंडीशन दिया हुआ है और दोनों कंडीशन में यहाँ पर बीच में क्या दिया हुआ है, और का मतलब अगर क्लर्क भी रहेगा तो भी दिखाएगा, अगर MGR रहेगा तो भी दिखाएगा, ठीक है। तो भी वो फील्ड वो रिकॉर्ड दिखाएगा। मगर अगर हम यहाँ पर और के जगह पर एंड लगा देते हैं तब क्या होगा, अगर जॉब उसका क्लर्क और मैनेजर जब दोनों रहेगा तभी दिखाएगा, ठीक है। ये एंड का मतलब हो गया कि when both the conditions are satisfied then only it will be executed. Let's see an example, ठीक है। Let's see an example, ठीक है। एक एग्जांपल फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी write the SQL to display the name and job of those employee who are तो क्या है, who are manager, who are क्या हम इसको बोलेंगे, employee whose job is who are clerk in job, CLEARK, clerk in, who are clerk in job, वो जॉब में क्या है, क्लर्क है। और जॉब में MGR है और जॉब इज MGR, ठीक है। एंड सैलरी इज लेस देन 3,000,
चलो ये कौन बताएगा, बोलो कितने कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है या तो जॉब इज इक्वल टू क्लर्क हो या जॉब इज इक्वल टू MGR हो, एंड भी है, ठीक है, उसका सैलरी 3000 से कम हो। मतलब हम अगर हम बोले तो वी आर गोइंग टू रिट्राइव दोज रिकॉर्ड व्हिच सैलरी इज लेस देन 3000 एंड जॉब इज आइदर क्लर्क और मैनेजर। अगर टीचर जॉब में है और सैलरी 3000 के अंदर में है तो उसका नहीं दिखाना है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट होगा बताओ, कौन बोलेगा, बोलो, ट्राई करो, चलो कहाँ, वो विल ट्राई, वो विल ट्राई। स्नेहलता तुम बताओ, स्नेहलता बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो। अनिशा तुम बताओ, अनिशा ट्राई करो, चलो बोलो, select ट्राई, ठीक बोल रही हो, बोलो, बोलती जाओ। ename and job एंड फिर कहाँ से तुम लगा रही हो उसमें, देखो एट, मेरे दिमाग में एक बात को डालो, एट्रीब्यूट्स के नेम के बीच में कभी तुमको एंड वेंड ना लगेगा, जब भी वहां लगेगा कॉमा। एट्रीब्यूट्स नेम आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा, रट लो इसको, ठीक है, 2 लाइन का है। एट्रीब्यूट्स नेम आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड कंडीशंस आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय आइदर एंड और, ठीक है। देखो कंडीशन के बीच में देखो एंड लगाते हैं, देख नहीं रहे ऊपर में, देखो एंड लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। फिर यहाँ देखो यहाँ पर और लगाए हैं, ठीक है। तो कंडीशंस आर सेपरेटेड बाय एंड और, ठीक है। और कभी एट्रीब्यूट के बीच में कभी एंड और नहीं लगता है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। एट्रीब्यूट कैसे सेपरेट होता है, कॉमा से सेपरेट होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, बात समझ में आया। चलो अब बोलो, अब बोलो, क्या बोलोगी, बोलो, select करो। ename ठीक है, job बोलो, हाँ ठीक है, कॉमा from बोलो। EMP बोलो, बोलती जाओ। from EMPL हाँ where job is equal to clerk बोलो। और उसके बाद और job is equal to MGR and salary वेरी गुड, less than 3000. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पर कितने, हाउ मेनी कंडीशंस आई हैव गिवन। फर्स्ट कंडीशन इज जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, या तो जॉब MGR होना चाहिए, दिस इज द सेकंड कंडीशन, एंड सैलरी लेस देन, दिस इज द थर्ड कंडीशन, ठीक है। ये वाला देखो और से जुड़ा हुआ है, मतलब दिस टू कंडीशंस आर कनकैटिनेटेड बाय और, ठीक है। यहाँ पे देखो जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और ये जो है दैट इज कनकैटिनेटेड बाय द, ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है। देखो एक कंडीशन हमारा ये है, दूसरा कंडीशन वो है, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो ये हम लगता है कि समझ में आ गया होगा। हम डिस्कस करेंगे अभी दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दूसरा है सेलेक्ट, तो समझ में आ गया। अब हमारा है, जैसे मान लो यहाँ पर देखो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, यहाँ पर यूज ऑफ डैश डैश एंड परसेंट, ठीक है, इसका यूज। जैसे अब मान लो क्वेश्चन है हमारा, माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू सी द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना, ठीक है। डिस्प्ले, ध्यान से, डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय whose name start with
whose name start with A, जिसका नाम A से शुरू होता है, लाइक अनीशा। ठीक है, ठीक है, बोलो। चलो अनीशा, जहां तक आता है वहां तक बोलो, फिर हम बताएंगे। बोलो अनीशा, बोलो, जहां तक आता है बोलो। डिस्प्ले नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, वहां तक तो बोलोगी ना। और कौन कौन है? श्रद्धा बताओ। Select ename from EMPL. ओके, राइट। सेलेक्ट ename फ्रॉम EMPL। ठीक है, सेलेक्ट ename फ्रॉम EMPL। ठीक है, अब देखो क्या है, जिसका नाम A से शुरू होना चाहिए। वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक एंड अंडर इन्वर्टेड कॉमा A लाइक, A लाइक शुरू होना चाहिए ना। A लाइक, नेम लाइक A%। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम A से शुरू होना चाहिए A%, और जिसका नाम A से खत्म होना चाहिए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन। डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय whose name end with A। ठीक है, डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज whose name not start, whose name end with A। ठीक है, ends ends with A। यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, बोलो। सेम उतना इतना तो लिखेंगे ही। Select ename from EMPL. वेयर नेम लाइक आगे में लगा देंगे। ठीक है, इसमें आगे में लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, वी आर लर्निंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग। ओके, जिसका नाम ए से शुरू हो, जिसका नाम ए से शुरू हो तो उसमें अंत में लगेगा। शुरू अगर देखना है तो अंत में लगेगा, अगर लास्ट देखना है तो पहले लगेगा, उल्टा हो जाएगा। शुरू का लास्ट, लास्ट का शुरू। बात आया समझ में? जैसे हम कह रहे हैं जिसका नाम ए से शुरू हो जाए, तो शुरू हो रहा है तो देखो पीछे लगा, और अगर ए से खत्म हो रहा है तो आगे लगा। बात आया समझ में? आई होप यू गॉट इट। Yes, अनीशा आया sir. समझ में? ए सूरज Yes, राज sir. चौधरी आया समझ में? भाग गया है? रिवांशी गॉट इट? आया समझ में जी? रिवांशी हो गई होगी। चलो अनीशा आया समझ में? Yes, sir. चलो Yes, श्रद्धा, sir. Yes, sir. सूरज, स्नेहलता, Yes, स्नेहलता, sir. अरे थोड़ा बोल दिया Yes, करो, sir. इतना बोलते हो। ओके, अब नेक्स्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ, हम एक होमवर्क देंगे अभी। डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय whose second letter whose second letter SECOND, whose second letter of name is A। जिसका नाम का सेकंड लेटर A है, उसका दिखाना है। सेलेक्ट नेम तो यहां तक हो ही जाएगा। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक, यहां तक तो लिखाएगा ही लिखाएगा। अब क्या है, सेकंड लेटर ना, पहला लेटर कुछ भी हो। ठीक है, पहला लेटर कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। वेयर ई नेम लाइक, पहला लेटर कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है। दूसरा लेटर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, उसका क्या है, दूसरा लेटर क्या होना चाहिए? ए। ठीक है, और पीछे में लगेगा कि आगे में लगेगा, ये बताओ। कहाँ लगाएं ये परसेंटेज का साइन? सर पीछे में। क्यों? सर वो सेकंड लेटर। ओके, राइट। अब जिसका सेकंड लास्ट लेटर ए है उसका क्या लिखेंगे? जिसका Select सेकंड लास्ट ename लेटर, from EMPL whose ename like double हाँ बोलो, inverted comma, हाँ बोलते जाओ। उसके ठीक है, बाद A। डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय whose second last letter is of name is A। ठीक है, क्या लिखेंगे सेकंड लास्ट के लिए? बताओ, सेकंड लास्ट के लिए क्या लिखेंगे? सूरज बताएगा। Yes, sir. सेकंड लास्ट, सर सेकंड लास्ट, परसेंटेज पहले हो। सेकंड लास्ट है ना। सेकंड लास्ट हमारा ए होगा, लास्ट कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, और ये परसेंटेज कहाँ लग जाएगा?
ये परसेंटेज आगे लग जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। समझ में आया? समझ में आया जी? सर चलो, आई होप इट इज क्लियर टू यू। कितना टाइम बच रहा है? 3 मिनट बच रहा है। ठीक है, हम एक आज शेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक शेयर करेंगे, उसको बनाना। ठीक है, और देखो, और देखते हैं जिसका उसी क्वेश्चन को देखते हैं जो आज हम देने वाले हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम देखते हैं जो आज हम देने वाले हैं। ठीक है, दिस इज क्रिएट द टेबल EMPL विद प्राइमरी की। प्राइमरी की को इसको भूल जाना। ठीक है, ये सबको भूल जाना। इंसर्ट रिकॉर्ड इन द टेबल, ये सब हो जाएगा। डिस्प्ले ई नेम, ये सब तो जान ही रहे हो। ठीक है, राइट द क्यूरी टू डिस्प्ले द नेम, ये सब बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। लिस्ट द डिस्टिंक्ट, ये छोड़ देना, ये भी बन जाएगा। अब देखो, ठीक है, मान लो जिसका फील्ड खाली रहे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी तो सिचुएशन आता है ना कि नाम लिखा ही हुआ नहीं है। ठीक है, नल, नल के लिए हाउ टू ट्रीट नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रीट नल। ओके, हाउ टू ट्रीट नल। ठीक है, नेक्स्ट, तो नल के साथ भी ऑलवेज यूज इज। हम इसके साथ इज का यूज करते हैं, इज इक्वल टू का इज का यूज करते हैं। ठीक है, मान लो नल, जिसका नाम नल है, जिसका नाम, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक एग्जांपल देके दिखा देते हैं। ठीक है, एक टेबल यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ पर मान लो ई नेम कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, नल है ये। ठीक है, तो हमको आई वांट डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर ऑफ डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर जॉब फ्रॉम टेबल EMPL वेयर ई नेम इज नल। क्या क्वेश्चन इसका है? डिस्प्ले द, क्वेश्चन है देखो यहाँ, डिस्प्ले क्वेश्चन है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर जॉब फ्रॉम टेबल EMPL वेयर नेम इज नल। क्या लिखेंगे बोलो इसका? क्या क्या डिस्प्ले कराना है? आंसर, कम टू द आंसर। सेलेक्ट EMPNO कॉमा जॉब फ्रॉम EMPL वेयर। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। वेयर ई नेम इज नल, इज का यूज करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर इज इक्वल टू का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जहां पर नाम सुनील है वहां पर क्या करेंगे? वेयर नेम इज इक्वल टू सुनील, ऐसे लिखेंगे। मगर अगर नल है तो यहाँ पर लिखेंगे इज नल। ठीक है, इज नल। और अगर नाम सुनील है उसको अगर खोजना है तो वेयर नेम इज इक्वल टू सुनील। आई होप यू गॉट इट। समझ में आया? कोई Yes, दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन टुडे आई विल सेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आज बनाकर हमको फिर इसको व्हाट्सएप पर हमको भेजना। ठीक है, आशा करते हैं कि ये बन जाएगा क्वेश्चन। जो नहीं बनेगा कल उसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया निशा? यस सर। श्रद्धा? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, तो 1 मिनट से कम बाकी है। ठीक है, चलो।